Hello students and welcome to your English language class. Today we'll be taking up yet another fiction from your supplementary reader Moments, and the title of this fiction is A House is Not a Home, written by Zan Gaudiaso. Now this story basically conveys the message that whatever good or bad happens in our lives, it always happens for a reason. Okay, so let's read this story. And this story reflects the challenge of being a teenager and the problems of growing up. How does the author overcome his problems? So here the narrator or the author is a teenager and he's facing a lot of problems because he has just joined a new school, and the atmosphere and his classmates and all his teachers are quite new to him, and he's not feeling very comfortable being here in this new school, and he's missing his previous school a lot. Okay, so let's start reading from the text. My first year of high school felt awkward after leaving junior high as the head of my class with all the seniority the upper grade levels could afford me. It felt strange starting over as a freshman. The school was twice as big as my old school, and to make matters worse, my closest friends were sent to a different high school. I felt very isolated. So the narrator here is saying that he has been admitted to a new school. He has just passed out from junior high school, and now he has joined the high school. Okay, and he's feeling all awkward, and he's not at all feeling very comfortable here in the new school. And this new school is twice as big as his old school. Okay, and all his closest friends, all his classmates, they are also gone to a different high school. So he's feeling very isolated, he's feeling quite lonely in this new school, right? So I missed my old teachers so much that I would go back and visit them. They would encourage me to get involved in school activities so that I could meet new people. They told me that in time I would adjust and probably end up loving my new school more than I had my old one. So obviously he's missing his old teachers, and he just visit them frequently. Okay, and all his teachers, they encourage him to get involved in the school activities, in the extracurricular activities, so that um, he could mix well with the people around there. Okay, वहाँ जो उसके क्लासमेट्स हैं, उसके जूनियर्स हैं, सीनियर्स हैं, उनके साथ थोड़ा इंटरेक्शन उसका बढ़ेगा, तभी वो उनके साथ जल्दी मिक्सअप होंगे, राइट? तो वो चाहता है जो उसके जो पुराने टीचर्स हैं वो उसको काफ़ी मोटिवेट करते हैं, इनकरेज करते हैं, इंस्पायर करते हैं कि तुम ज़्यादा से ज़्यादा जितनी स्कूल एक्टिविटीज़ हैं उसमें इन्वॉल्व हो, ठीक है? चाहे वो स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ हैं, चाहे वो कोई आपकी क्रिएटिव फील्ड में आर्ट एंड ड्रामा है, म्यूज़िक है, कुछ भी है, आप उसमें ज़्यादा से ज़्यादा इन्वॉल्व होने की कोशिश करो एंड स्टार्ट मेकिंग फ्रेंड्स, राइट? और जब ऐसा होगा तो क्या होगा कि हो सकता है तुम अपने पुराने स्कूल को धीरे धीरे भूलने लग जाओ और नए स्कूल को बहुत ज़्यादा पसंद करने लग जाओ. They made me promise that when that happened, I would still come by and visit them from time to time. और वो उसे कहते हैं लेकिन फिर भी तुम प्रॉमिस करो कि अगर तुम्हें अपना ये नया स्कूल इतना पसंद आ गया, still you will come back and visit us sometime. Okay. I understood the psychology in what they were saying, but I took some comfort in it nonetheless. So basically the narrator was understanding the underlying feeling, ठीक है, जो वो कन्वे करना चाहते थे, that you should move on, you shouldn't stick with your past. Okay, तो अपने पास्ट को भूल कर तुम्हें आगे मूव ऑन करना चाहिए अपनी लाइफ में. that's what they were trying to tell him. बट इतना ईजी नहीं होता है कि आप अपने पास्ट को भूल कर बिल्कुल ही कम्प्लीटली वाइप ऑफ करके एंड यू जस्ट मूव ऑन, राइट? तो बट वो कहीं ना कहीं वो उस चीज़ को अप्रिशिएट भी करता है, तो वो
उनकी बात को मानने की कोशिश भी करता है. So one Sunday afternoon, not long after I had started high school, I was sitting at home at our dining room table doing homework. Okay, so one Sunday afternoon he was just sitting on the dining room table and he was doing his homework. It was a cold and windy fall day. So it was autumn, okay, and the weather was quite cold and it was windy. So wind was blowing, it was chilled, quite chilled, and it was quite cold. And we had a fire going in our fireplace. So basically वहाँ पे क्या होता है अब्रॉड मोस्टली जहाँ पे बहुत ज़्यादा सर्दी होती है या स्नोफॉल होता है तो वहाँ पे यूजुअली घरों के अंदर दे मेंटेन दिस फायर प्लेस. आपने मे बी मूवीज़ में देखा होगा या अगर आप किसी हिल स्टेशन गए हो तो वहाँ भी होटल्स वगैरह में दे हैव दिस काइंड ऑफ सेटअप वेयर दे हैव फायर प्लेसेस. ओके, तो जैसे होती है ना कई घरों में देखा होगा छोटी सी अंगीठी होती है हाथ सेकने के लिए. सो लाइकवाइज टू कीप द हाउस वार्म दे हैव दिस फायर प्लेस. ठीक है, तो वहाँ पे जैसे लकड़ी या कोयला वगैरह जला के घर को गर्म रखने की कोशिश की जाती है. सो एज यूजुअल माई रेड टैबी कैट वॉज लाइंग ऑन टॉप ऑफ ऑल माई पेपर्स. अब उसकी जो रेड कलर की एक डिफरेंटली स्ट्राइप्ड कैट जो थी वो इट वॉज जस्ट सिटिंग ऑन ऑल हिज पेपर्स परिंग लाउडली. कैट की जो एक साउंड होती है ना परिंग वाली, so it was making that sound and occasionally swatting at my pen for entertainment's sake. So it was playing with his pen and for his amusement he was doing that. Okay, it was she. So she was playing with his pen for entertainment's sake. She was never far from me. I had rescued her when she was a kitten. So it was a female cat and the narrator must have rescued or saved him when she was just a kitten. And somehow she knew that I was the one responsible for giving her the good life. और वो एक्नॉलेज करती थी इस फैक्ट को कि उसने उसकी लाइफ को बचाया है और उसको बहुत ही पैम्पर करता है और उसको एक अच्छी लाइफ वो प्रोवाइड कर रहा है. माई मदर केप्ट स्टोकिंग द फायर टू कीप द हाउस नाइस एंड वार्म. स्टोकिंग द फायर मीन्स जैसे आग बुझने वाली होती है तो आप उसमें थोड़ी और ज़्यादा लकड़ियाँ या कोयला उसमें फीड ऑन करते हैं. ठीक है, ताकि आग बुझ ना जाए, जलती रहे. सो his mother was stoking the fire or feeding the fire from time to time. Suddenly I smelled something strange and then I noticed it. और एकदम से वो जो एक अजीब सी स्मेल नरेटर को आने लगती है और वो नोटिस करता है कि स्मोक पोरिंग इन थ्रू द सीम्स ऑफ द सीलिंग. और जो स्मोक है पूरे घर में धीरे धीरे धुआं फैलता जा रहा था. सीम्स ऑफ द सीलिंग मीन्स जो लाइंस ऑफ सेपरेशन होती है सीलिंग में ना, वहाँ से भी वो धुआं उसको दिखाई दे रहा था बाहर निकलता हुआ. द स्मोक बिगैन टू फिल द रूम सो क्विकली दैट वी वुड बेयरली सी. ठीक है, और इतना ज़्यादा रूम में धुआं भर गया था कि अब दिखाई भी देना मुश्किल हो रहा था. Groping our way to the front door, so somehow they were crawling and they were making their way to the front door. We all ran out into the front yard. और वो बाहर की तरफ जल्दी से अपनी जान बचाते हुए भागते हैं. By the time we made our way outside, the whole roof was engulfed in flames and it was spreading quickly. और जब तक कि वो किसी तरीके से धीरे धीरे करके वो बाहर निकलते हैं तब तक पूरी जो ऊपर छत होती है वहाँ पे, मे बी दिस हाउस वॉज मेड ऑफ वुड, तो वो पूरा जो है आग पकड़ लेता है ऊपर की जो छत है. एंड इट वॉज गोइंग अप इन फ्लेम्स एंड इट वॉज ऑब्वियसली वुड का है, वुडन हाउस है, तो बहुत जल्दी फायर जो है वो स्प्रेड हो जाती है. आई रैन टू द नेबर्स टू कॉल द फायर डिपार्टमेंट. अब जो नरेटर है वो जल्दी से अपने नेबर्स के पास हेल्प के लिए जाता है कि please call the fire department, my house is on fire. While I watched my mother run back into the house. और उसकी मदर जो है वापस उसी जलते हुए घर में भागकर अंदर जाती है. My mother then ran out of the house carrying a small metal box full of important documents. और उसकी मदर जो है वापस बाहर निकल कर आती हैं घर से और उनके हाथ में एक मेटल बॉक्स होता है जिसके अंदर जितने भी इम्पॉर्टेंट कागजात होते हैं, डॉक्यूमेंट्स होते हैं, वो लेकर
बाहर आती हैं. She dropped the case on the lawn and in a crazed state, एकदम just like she was behaving like a mad woman and she was running back into the house. I knew what she was after. और मुझे आइडिया था कि अब वो क्या लेने जा रही है अंदर. My father had died when I was young and I was certain that she was not going to let his pictures and letters go up in flames. अब जो नरेटर की मदर होती हैं वो अपने हस्बैंड से बहुत ज़्यादा अटैच्ड होती हैं और उनके हस्बैंड की काफ़ी साल पहले डेथ हो चुकी होती है, तो उनकी जो कुछ पिक्चर्स होती हैं और कुछ लेटर्स होते हैं, हैंड रिटन लेटर्स होते हैं, तो वो उनको बचाने के लिए वापस दोबारा से उस जलते हुए घर के अंदर भाग के जाती है. सो दे वर द ओनली थिंग्स दैट शी हैड टू रिमेंबर हिम बाय. और वही शायद उनकी कुछ लास्ट मेमोरीज थी और उनको वो बचाने के लिए शी वॉज रेडी टू पुट हर लाइफ एट स्टेक. स्टिल आई स्क्रीम्ड एट हर, मॉम नो. द नरेटर ही स्टार्टेड स्क्रीमिंग that mom please don't go inside. Okay, but she didn't pay any heed to the narrator and she just ran inside. I was about to run after her when I felt a large hand hold me back. मैं भी उनके पीछे भागने वाला था लेकिन तभी एक बड़े से हाथ ने मुझे रोक लिया. It was a fireman. तब तक मे बी वहाँ पे जो एक फायर ब्रिगेड है वो आ चुकी होती है और एक फायरमैन नरेटर को रोक लेता है अंदर जाने से. आई हैडंट इवन नोटिस दैट द स्ट्रीट हैड ऑलरेडी फिल्ड विद फायर ट्रक्स. और मेरा ध्यान भी नहीं जाता है कि पूरी स्ट्रीट जो है, जो फायर ब्रिगेड के ट्रक्स होते हैं उनसे भर चुकी थी. आई वॉज ट्राइंग टू फ्री माई सेल्फ फ्रॉम दिस ग्रास्प येलिंग. और मैं अपनी जो फायरमैन ने मुझे पकड़ रखा था उस पकड़ से अपने आप को छुड़ाना चाहता था. एंड आई वॉज शाउटिंग, यू डोंट अंडरस्टैंड, माई मदर्स इन देयर. और जो नरेटर है वो चिल्ला रहा होता है कि तुम नहीं समझ रहे हो, मेरी मदर अंदर है. ही हेल्ड ऑन टू मी वाइल अदर फायर फाइटर्स रैन इनटू द हाउस. लेकिन वो जानता था कि अंदर जाना खतरे से खाली नहीं है, तो वो ही वॉज नॉट रेडी टू लेट हिम गो. ओके, बट जो बाकी फायर फाइटर्स होते हैं वो अंदर उस हाउस के अंदर जाते हैं. ही न्यू दैट आई वॉजंट एक्टिंग वेरी लॉजिकली एंड दैट इफ़ ही वर टू लेट गो आई वुड रन. ही वॉज राइट. अब उस फायरमैन को पता था कि मैं बिल्कुल भी लॉजिकली काम नहीं कर रहा हूँ. आई एम नॉट थिंकिंग स्ट्रेट एंड दिस एक्ट ऑफ माइन वुड बी द मे बी इट कुड जस्ट पुट एन एंड टू माई लाइफ, राइट. सो वो ही वॉज नॉट रेडी टू लेट मी गो एंड समहाउ ही वॉज राइट. इट्स ऑल राइट, दिल गेट हर, ही सेड. तो उसको समझाता है, डोंट वरी, दिल गेट योर मदर बैक सेफ एंड साउंड. You just relax. He wrapped a blanket around me and sat me down in our car. और वो जल्दी से एक ब्लैंकेट लाके उसको ढक के और उसको कार में बिठा देता है. Soon after that, a fireman emerged from our house with my mom in tow. और तभी एक फायरमैन जो है मेरी मदर को किसी तरह से पकड़ के बाहर लेकर आता है. He quickly took her over to the truck and put an oxygen mask on her. और जल्दी से उनको जो वहाँ पे फायर ट्रक होता है उसमें लेके जाते हैं और जल्दी से ऑक्सीजन मास्क लगाते हैं. मे बी शी वॉज देयर फॉर क्वाइट सम टाइम इन द स्मोक एंड शी वॉज नॉट एबल टू ब्रीथ प्रॉपरली, सो शी वॉज रनिंग आउट ऑफ ऑक्सीजन मे बी. आई रैन ओवर एंड हग्ड हर. ऑल दोज टाइम्स आई एवर आर्ग्यूड विद हर एंड हेटेड हर वैनिश्ड एट द थॉट ऑफ लूजिंग हर. अब जैसे ही मुझे ये रियलाइजेशन होता है दैट आई एम अबाउट टू लूज़ हर, जितना भी मैंने उनसे लड़ाई की होती है और जितने भी टाइम मैंने उनसे हेट की होती है, ओके, वो सब एक मिनट में गायब हो जाता है. जैसे ही ये थॉट मेरे दिमाग में आता है दैट आई एम अबाउट टू लूज़ हर, तो वो सारी चीज़ें वैनिश हो जाती, गायब हो जाती हैं दिमाग से. शी इज़ गोइंग टू बी ओके, सेड द फायरमैन. शी जस्ट इनहेल्ड अ लिटिल स्मोक. अब जो फायरमैन है उसे कंसोल करता है, डोंट वरी, योर मदर विल बी फाइन in no time. She just inhaled a little smoke and that's why she's feeling dizzy. And then he ran back to fight the fire while my mother and I sat there dazed. अब जो फायरमैन है वो वापस अपने काम पे लग जाते हैं to put out the fire and the narrator, he just sits down with his mother and both of them are
just looking at the house blankly. Okay, एकदम they are totally stupefied and they are not thinking straight, and they are just helpless. I remember watching my house burn down and thinking that there was nothing I could do about it. अब वो सिर्फ बैठ के अपने घर को जलते हुए देख रहे हैं और वो जानते हैं कि वो कुछ भी नहीं कर सकते इस टाइम पे. ओके. So 5 hours later, the fire was finally out. So it took almost 5 hours, more than 5 hours, to finally put out the fire. Our house was almost completely burnt down. और उनका जो घर है वो पूरी तरह से जल के राख हो चुका था. But then it struck me I hadn't seen my cat. और तभी मुझे ध्यान आता है कि मैंने अपनी बिल्ली को नहीं देखा होता. Where was my cat? Much to my horror, I realized that she was nowhere to be found. Then all at once it hit me, the new school, the fire, my cat. Okay. और एकदम से वो जितने थॉट्स होते हैं उसके नरेटर के दिमाग में एक साथ क्लिक करते हैं कि नया स्कूल, ये आग लग गई और अब मेरी कैट भी नहीं मिल रही है. सो लाइफ इज़ टोटली डूम्ड. ओके. उसको एकदम से ना लगता है कि सब कुछ गलत हो रहा है, कुछ भी ठीक नहीं हो रहा है. आई ब्रोक डाउन इन टीयर्स एंड क्राइड. आई वाज सफरिंग लॉस बिग टाइम. और एकदम से वो he just loses his calm and he starts crying, and he's crying like a baby, and he's basically he's thinking about all that things which are going wrong in his life. Okay. And he's feeling totally at loss. So I hope you've understood till so far. Just read this chapter and write all the difficult words and try to find out their meaning. Okay. You can just write them down in a rough notebook or in fair notebook if you want. Okay. And just submit your homework by 3 o'clock tomorrow. Thank you for watching this video.